इट इज इल्यूजन. वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन. गीता में लिखा है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे. खाली हाथ आए थे गालिब और खाली हाथ ही जाओगे. What is meditation? क्या है meditation? वन यू विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्ट. और वो स्पिरिचुअल कनेक्ट का जो मैंने कहा कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन. तो व्हेन यू मेडिटेट यू विल बी मोर ब्लेस्ड. तो ऐसे लोगों के चेहरे पे ग्लो होता है, यू नो, एंड उनको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत कभी नहीं पड़ती. आपका सारा सिस्टम इतना पॉजिटिवली अलाइंड हो जाएगा, यू विल बिकम ए पावर हाउस ऑफ इंडिया. तो पीपल हु आर हैप्पी दे आर हेल्दी. कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डाल. पीपल गेट मेनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हेन दे डू रियल मेडिटेशन, बिकॉज व्हेन यू आर मेडिटेटिंग यू आर नॉट इन योर ओन सेल्फ. अब आप कौन, आपकी आइडेंटिटी वहाँ पे खत्म हो चुकी है. You are connected to a different higher kind of energies and you are floating in that kind of energies. तो ये आपको किधर भी लेके जा सकती है. Sometimes people experience they are floating, वो हवा में आ गए हैं. मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है. जिसकी हो गई है वो और परेशान हो गया. अगर मुझसे कोई पूछा है what do you think while meditating, I say this is a wrong question. Meditation is a thoughtless state. जो खुश है वही खुश नसीब. ये तलाश रहा हूँ मैं रोशनी, जाने कहाँ मंजिल का बसेरा था. तलाश रहा था मैं रोशनी, जाने कहाँ मंजिल का बसेरा था. देखा जब मैंने गौर से तो मैं ही चिराग और उसके तले अंधेरा. तो एवरी पर्सन हैज दैट लाइट विद इन. तो if you just ignite it only because of meditation, you will be done, you will be happy, and then you will be blessed. Hello and welcome to our show Problem क्या है? Well, in today's fast-paced and chaotic world, finding inner peace and wellness has become a priority for all of us. And for that, many of us has turned to meditation because a healthy mind leads to a healthy life. But still, many of us aren't sure about how to practice mindfulness and meditation. Well, to know the power of meditation and to talk about it, we have an expert with us today who is an astrologer and a motivational speaker, Dr. Sandeep Kochar. Hello, doctor. How are you today? Very good, Roshni, and how about you? I'm great. Welcome to our show. Thank you so much. So, doctor, I'll start with the basic question. What is meditation? क्या है meditation? See, when I think it is not an easy question to answer because there are many people with different mindset and different ways of understanding meditation. Right. According to me, meditation is something where you are with yourself and trying to connect with higher self and being one, you know, in your own physical presence and connecting to the higher divine forces where there is no religion. Right. So that is meditation. You know, when there is nothing around you and you are in a different world and feeling so happy about it only by yourself. तो जैसे आपने बताया that you feel so divine, इसके क्या effects होते हैं आपकी बॉडी पे? Like what are the effects of meditation? देखिए, बॉडी का नंबर बहुत बाद में आता है. आपने कहा कि आपके शो का नाम है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है. तो प्रॉब्लम यही है कि आप प्रॉब्लम ढूंढने निकल जाते हैं. तो मैं एक्चुअली, दो आई एम एस्ट्रोलॉजर सिंस लास्ट 25 years, बट आई बिकम मोर ए लाइफ कोच एंड आई हैव अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, कहाँ है. तो मुझे लगा कि जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी. आई बिकम ए पोएट एक्चुअली. तो जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी. तो हर कोई इंसान मुश्किल, जिंदगी को मुश्किल में डाले चला जा रहा है बाय ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, over evaluating, comparing and having bigger desires, mostly materialistically. So there is nothing wrong, you know, everyone has a purpose. जब हम born होते हैं हमें लगता है कि we should do something for our parents, then we get married, लगता है कि you know now we need to contribute with our spouses and then for children. So पूरी जिंदगी and then later on obviously for your society and your country. तो ये बहुत अच्छा thought है, लेकिन उस process how exactly you are feeling, ये बहुत important है. क्या आप बर्नआउट हो रहे हैं ओनली बाय गोइंग इनटू द ग्राइंड, कि रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं. तो एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड समथिंग एंड दैट इज हाउ पीपल आर गेटिंग एलिमेंट्स. आज आप देखिए हॉस्पिटल्स में जाइए, अभी लोग कंप्लेन करते थे अरे रेलवे स्टेशन में इतनी रश है. अब आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में एयरपोर्ट से ज्यादा रश अब हॉस्पिटल्स में. सो व्हाई इट इज हैपनिंग? It is happening only because of the mindset is not right. Stress. Absolutely. And stress, what is stress? See, doctors and medical scientists, Roshni, all over the globe, they say everything has become psychosomatic. And what is the definition? Bodily disorder formed by human brain. So if the person has a overthinking mind or a negative thinking mind,
the person will create stress which lead to anxiety, and Oh. anxiety creates some chemical emotional imbalance in body, and that is how they attract some kind of ailment. तो सारी कहानी यहाँ पर है. When I was in London, I read an article. उसमें headline में लिखा था, doctors will keep on telling you it is all in the mind. I was Yeah. zapped. तो मैंने उसको पढ़ा. उसमें लिखा था, they have discovered another phenomena known as BDS, bodily distress syndrome. That body understands something from the mind, and then they say we have no cure. Go to a counselor or a psychiatrist. Astrologer का नाम नहीं लिखा था. But what I'm trying to say is everything is here, and people they don't realize. तो लगता है कि हाँ टेंशन नहीं होगी तो क्या होगा, अभी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, जिसकी हो गई है वो और परेशान हो गया. तो पीपल आर मतलब व्हेन यू विल बी हैप्पी. और मेरा इतना ब्यूटीफुल एक स्टेटमेंट है विच इज माय फेवरेट, स्पाइट ऑफ राइटिंग 100,000 पोएट्री. मैं पोएट्री तो बना ही लेता हूँ ऐसे के बट एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, आधी लाइन है वो, जो खुश है वही खुश नसीब. That's true. इंसान ऐसी चीज है जो खुश कभी नहीं होता. या मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इज अ हैबिट. एक बार मैंने वाइफ के लिए लिखा था, फिर उसको बुरा लगा, तो मैंने कहा जिंदगी के लिए लिखा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी. we all get used to the situation, complaining बॉस ऐसा है, कंपनी ऐसी है, ये सिटी ऐसा है, ये वेदर ऐसा है, ये कंट्री ऐसी. तो आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी. तो इवन व्हेन सिचुएशन इंप्रूव फॉर देम दे रिमेन द सेम, क्योंकि they are craving, complaining, and they have conditioned their mind that they are supposed to complain all the time, and that is how they may like difficult. But there are also people, who are happy, who have achieved a lot of things in life, and they are at a successful platform, but still they, see कि अब और अच्छी जॉब मिल जाए और सक्सेसफुल बन जाए. But it's a never, unlike वो hustle, they're not stopping that hustle. They're always, trying to achieve more. और लोगों को उन चीज़ों का भी स्ट्रेस होता है, और वो भी उन चीज़ों उनकी लाइफ में अफेक्ट मतलब कहीं ना कहीं कर ही रहा है. मतलब दे आर नॉट रेडी टू सेटल. मतलब इंसान ऐसी चीज़ है जो सेटल होना नहीं चाहता. दे लाइक कि आज 10 है तो कल 20 हो, फिर 20 है तो फिर 30 हो. सो व्हाट अबाउट दैट? हाउ टू काम दैट, मतलब क्या ये चीज़ होना ठीक है या ये चीज़ होना गलत है? बस देखिए, आपने 7-8 लाइन का क्वेश्चन है, इसको मैं 2 लाइन में इसका आंसर देता हूँ. ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन. मतलब रियलिटी ये है और सोच रहे हैं वहां पे जो आप कह रही हैं, एवरीवन एंड दे आर नॉट हैप्पी. तो ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में. तो ठीक है, दौड़ना चाहिए. वी हैव अ पर्पस इन लाइफ, वी शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ. बट इफ यू वांट टू रियली इतनी तेज दौड़ लें कि आप एक दिन उड़ ही जाएंगे, तो फिर उड़ ही जाएंगे, then you will waste your life. तो ये जो आपने कहा कि in spite of achieving what they really wanted, they are never content. और मैं हमेशा कहता हूँ content with what you have, still looking for more. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत, उसका बैलेंस हम लोग बना नहीं पाते. काश मेरी जिंदगी में ये हो जाए. कब हम स्कूल में थे तो ये सोचते थे, कॉलेज में सोचते थे, ये सोचते थे, फिर जब हकीकत नहीं इतना नहीं, इससे काम चलेगा, तो हमारा वो जो वांट है, डिजायर है, वो बढ़ता चला जाता है. और पूरी इसीलिए इसको हम माया संसार कहते हैं. मैं तो माया नगरी हूँ. तो इट इज इल्यूजन. वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन. गीता में लिखा है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे गालिब और खाली हाथ ही जाओगे. तो दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ. बट वी डोंट रियलाइज, वी डोंट किसी ने कहा था, द मनी विच यू हैव इन बैंक ऑन द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ is the money you have earned extra for, you wasted your time on that. So मुझे लगता है कि बच्चे कहते हैं कि हमने बच्चों के लिए करना है, पहले खुद के लिए. मैंने कहा आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया? उन्होंने सपोर्ट किया, आपकी एजुकेशन आपको क्रिएट की, एक परवरिश की, आपको एक आपको कल्चरल आपको ऊपर किया उन्होंने. तो वाई एवरीवन हैज देयर ओन डेस्टिनी. मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ. जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है रोशनी, फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज. समथिंग विच इज प्री रिटन, प्री डिस्टेंट, प्री ड्राफ्टेड और प्री डिस्टेंट, देन व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? तो मैं सबसे ये कहता हूँ यार, स्ट्रेस मत लीजिए. ट्रस्ट मी, एस्ट्रोलॉजी का परसेप्शन सिर्फ यही है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे और वो कोई उपाय बताएंगे, कोई टोटका बता देंगे, रेमेडी बताएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते? तो when astrologer cannot change his life, how can he change yours? तो purpose of astrology is to make you aware about who you are. और आप जो मैं I'm so happy, so thrilled, so excited, so blessed that I'm here sitting with you, because this is my only thing in life which I have understood in 25 years of journey. Only solution to every problem, or only remedy in astrology even, if you ask me, is meditation. Because when you meditate, you can change anything in your life. And I can describe later on how planet can be influenced with the help of astrology, which no astrologer will talk about. Right.
तो अगर आप मेडिटेशन की बात करें डॉक्टर, जैसा आपने बोला, मतलब कितनी देर की मेडिटेशन रोज जरूरी है या होनी चाहिए? कोई कोई एक्यूरेट टाइम स्पैन है? देखिए, एक मोमेंट ही काफ़ी है, one moment of that connect. People claim, I meditate every day 1 hour. अब उस मेडिटेशन में उससे पूछिए, मीटर तो है नहीं, कोई प्रिंट आउट निकले कि इसने क्या हल बनाया है, तो वो सब कुछ सोच रहा है। वो रणवीर कपूर भी उसको याद आ रहा है, दीपिका पादुकोण भी याद आ रही है, और सब चल रहा है, मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं। तो दैट इज नॉट मेडिटेशन। क्लोजिंग योर आईज एंड जस्ट थिंकिंग समथिंग, ठीक है, प्रोसेस है। आज मैं आपसे कहता हूँ मेडिटेशन करिए, आपने कभी नहीं किया जिंदगी में, तो मे बी आफ्टर 3 days यू विल से, आई डोंट थिंक इट इज कमिंग, बिकॉज इट इज नॉट ईजी। ये जो माइंड है, ह्यूमन माइंड, ये बहुत वनरेबल है, बहुत, मतलब इट इज ऑलवेज थिंकिंग ऑल द टाइम। बट एंड अगर कोई दूसरा कोई इंसान आता है यहाँ बैठ जाए, और वो कोई बहुत महान सेंट बनने वाला है फ्यूचर में, उसको भी मैं कहूँगा मेडिटेशन करिए आप, तो दोनों का प्रोसेस सेम वे में शुरू होगा। उसको भी 1000 चीज़ें दिखेंगी, आपको भी 1000 चीज़ें दिखेंगी। आप 3 दिन में 10 दिन में गिव अप कर दोगे, वो गिव अप नहीं करेगा। सो सबसे पहले मेडिटेशन में हमेशा कहता हूँ, फॉर मेडिटेटिंग यू नीड टू टिक फ्यू बॉक्सेस। पहला बॉक्स है, यू आर नॉट डूइंग सम योगा और एक्सरसाइज, यू आर डूइंग समथिंग डिवाइन, समथिंग डिवाइन। सेकेंडली, यू आर डूइंग समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। थर्ड बॉक्स इज, it will take care of all your stress, your anxiety, and fourth is, it will make you super intuitive, and ultimately you will be happy. और जो मैंने कहा, people who are happy, they are blessed. So meditation का टाइम नहीं है, पहले 1 घंटा, आधा घंटा, फिर मैंने कहना शुरू किया, ऐसा करिए आप 10-10 मिनट मेडिटेट किया करिए। देन आई रियलाइज ये 10 मिनट भी नहीं है लोगों के पास। फिर मैंने शुरू कर दिया कहना कि 5 मिनट, आई एम ऑल्सो ए मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे आपने कहा, तो मैंने कहा 5 मिनट मेडिटेशन करिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। अभी आई गेव ए टेड टॉक्स, डेली कॉलेज है इंदौर में, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ऑल फॉर रूलर्स। तो उसमें मैंने कहा कि मैंने देखा बच्चे बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, और आई एम सपोज टू टेल देम विच इज सिंपलर टू देम। तो मैंने कहा कि डू मेडिटेशन 1 minute ईच फॉर 5 times a day। द प्रिंसिपल वाज सो थ्रिल्ड। उसने बाद में माइक में बोला कि आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस फ्रॉम टुमारो, बिफोर बिगिनिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ एनी सब्जेक्ट, हर रोज 1 मिनट का मेडिटेशन होगा। टीचर्स एंड स्टूडेंट विल डू इट टुगेदर 1 minute बिफोर बिगिनिंग ऑफ एनी क्लास। तो वहां का रोल बन चुका है। सो दैट इज समथिंग। तो आपने कहा ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी से मोहब्बत, किसी से चाहत, किसी से शिद्दत, ऊपर वाले से भरोसा, ये कनेक्ट है। वो कनेक्ट आपका अंदर इम्बाइब सिस्टम में होना चाहिए। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, कि आई नीड टू कॉल माय वाइफ और somebody is waiting for me. I'm here, I'm doing something totally engrossed, I don't know what I'm talking about, but I'm engrossed, I'm in a situation, I'm in a process. This is meditation. So when you are not thinking about anything and you are doing something totally what you are supposed to do, it's also a meditation. But coming back to your question, there are many ways of meditating. अब जैसे श्री श्री रविशंकर जी कराते हैं, उनका एक अलग प्रोसेस है, सुदर्शन क्रिया कहते हैं उसको। फिर सदगुरु जी कराते हैं, वो इनर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। फिर ब्रह्मा कुमारी है, वो लोग लाइट पे बिलीव करते हैं। फिर विपासना है, विपासना में दे टॉक अबाउट ब्रीदिंग अगेन, लाइक वहाँ पे। तो एवरी टेक्निक इज अ डिफरेंट टेक्निक, बट मुझे लगता है कि एनी टेक्निक विच इज कमिंग नेचुरली टू यू, दैट इज द राइट मेडिटेशन। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं है, पीपल गो टू टेम्पल्स। नहीं, हमें पंडित जी ने कहा था कि मेरा मंगल भारी है, मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, और शनि भारी है, मुझे शनिवार को वहाँ जाना चाहिए। अगेन रिचुअलिस्टिक। मैं कहता हूँ, रिलीजन इज मैन मेड, बिकम स्पिरिचुअल। फॉलोइंग फ्यू रिचुअल्स has nothing to do with spiritual is beyond following rituals। तो जो कनेक्ट है, तो वहाँ पे आप मंदिर गए, आपने फोन करा के VIP दर्शन कर लिए। मैं मुंबई से हूँ, वहाँ पे सिद्धि विनायक में आपका नंबर नहीं आएगा ट्यूसडे को 5 घंटे तक, इतनी लंबी लाइन होती है। हाँ, लेकिन आपके पास गोल्ड कार्ड है, या अगर आप वहाँ किसी उससे गए हैं रेफरेंस से, तो आपका VIP दर्शन होगा। तो क्या भगवान आपको देखने वाले हैं? नहीं, भगवान उसको देख रहे हैं जो वहाँ पे आधे घंटे से पीछे बैठा है, बिल्कुल ध्यान लगा के। तो दैट इज समथिंग, यू फील दैट एनर्जी। नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा था कि सांसों की माला में लिख दूं पी का नाम। फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी आर ब्रीदिंग, तो व्हाई यू आर काउंटिंग? पंडित जी ने कहा है कि इसका 1 लाख मंत्र का जाप करिए। अरे फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेयर एवर यू आर, फील इट। शहर की इस गली में ढूंढा ढूंढा तुझे फिजाओं में, शहर की इस गली में ढूंढा ढूंढा तुझे फिजाओं में, किया जो सजदा तेरे लिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। So if you feel the presence of that kind of Almighty, then you are in a meditating state, because meditation is something which is divine. You cannot say कि meditation करने से आपका ये वाला बॉडी का पार्ट ठीक हो जाएगा, वो पूरी जिंदगी ही बदल दो। That's very nice. That's very deep.
लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं बट दे लैक फोकस, क्योंकि पूरे टाइम पीपल आर ऑन फोन लैपटॉप्स, माइंड इज नॉट स्टेबल, कि वो 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे, उनके दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स हैं, पूरा टाइम ओवर थिंकिंग है. सो हाउ टू मैनेज दैट? देखिए अभी इफ यू अलाउ मी आई कैन कनेक्ट एवरी प्लैनेट, हाउ अ पर्सन पर्सनालिटी इज गवर्न बाय प्लैनेट एंड हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. there are 9 planets, right? We'll start with sun और मैं moon को skip कर दूंगा. Moon is not a planet. Moon is a planet and the most important planet in Indian astrology. पूरी एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी हमारी मून साइन पे चलती है. अगर मैं आपसे आपका साइन पूछूंगा, आई एम 100% श्योर यू विल टेल मी योर सन साइन, बिकॉज 90% पीपल दे नो देयर सन साइन, दे डोंट नो योर मून साइन. I know both. Entire okay, I'm glad. Entire zodiac is astrology is based on moon sign. तो मून की बात करूंगा सबसे बाद में, because that is the most important thing. So starting from sun, if somebody who has a strong sun, exalted sun or sun on the ascendant early morning का birth है, जैसे आपकी नोज ऊपर है तो ऐसे लोगों का मॉर्निंग बर्थ होता है. For them pride, self respect, dignity, self esteem becomes very important. और इसका एक सिनोनिम और है, वो है ईगो. अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो एक यहाँ पे आपका अपने आप आ जाता है हाउ डेयर यू. तो उनके लिए प्राइड, तो वो दैट कैन क्रिएट ए सिचुएशन ऑल्सो. कि व्हाट इफ हस्बैंड मेल ईगो, हो सकता है बॉस आपका बहुत इगोस्टिक हो और आपने कुछ एक जेस्चर उसको बिगाड़ दिया. अब मेडिटेशन से क्या होगा, यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस. तो मेडिटेशन विल काम डाउन दैट काइंड ऑफ सन जो आपको अथॉरिटी दे रहा है. आपकी बॉडी लैंग्वेज को उसने ऐसा रखा हुआ है, प्राइड, आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट. जैसे यू लुक लाइक डोंट मिस अप विद मी, यू आर लाइक, आपकी पर्सनालिटी इज क्वाइट, it is a compliment actually. Perception plays a greater role than who you really are. जैसे for me, अभी मैं 25 years astrology कर रहा हूँ. God has been kind to me, whatever I achieve from here or in other countries. Right. But my body language is, मेरा drooping shoulder है, ऐसी है, बहुत casual हूँ, मतलब this is what I am. But I'm very happy with it. I'm quite a careless person and that's not professional. But I'm okay. I'm happy with it. But you are quite careful with your body language and everything. This is sun. तो sun जब आप meditate करते हैं तो sun का जो ग्लो है वो तो बढ़ जाएगा. बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है, तो सूरज which is glowing, so that will help you. But अगर ईगो का प्रॉब्लम है वो डिमिनिश हो जाएगा. Now coming to skipping moon, now coming to Mars. Mars is a planet which can make a person again authoritative but also aggressive. वो इंसान छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करेगा. वो इंसान का टॉलरेंस लेवल ग्रेट नहीं होगा. वो हर बात को इम्पोज करने की कोशिश करेगा. बट गुड साइड है, दे बिकम स्पोर्ट्स पीपल. जैसे यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग आईब्रोज, आप जितना भी उसको प्लग कर ले, बट उसकी डेंसिटी आप चेंज नहीं कर सकते. यू हैव ए क्वाइट डिफाइंड वन. सो यू आर ऑल्सो लाइक दैट, यू आर अथॉरिटेटिव इन दैट वे. तो अभी अगर वो अथॉरिटी एग्रेशन में कन्वर्ट हो गई तो देन इट इज नॉट ए ग्रेट आइडिया. तो हाउ टू चेंज दैट? मेडिटेशन. So when you will meditate, your Mars will calm down. You will understand what to say, what not to say. जो अभी नहीं आता, you can react just like that. You means anyone, I'm saying, not you. If I'm saying you, it is not for you, please. So people who have Mars, which is a problem. Like किसी का debilitated Mars है, उसको हर बात पे वो provoke हो जाता है, react करता है. Meditation से उसकी calmness बढ़ जाएगी और वो इंसान बहुत एक positive हो जाएगा. तो दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन कि यार माय हस्बैंड इज वेरी एग्रेसिव, माय बॉस इज एग्रेसिव. तो अगर वो लोग मेडिटेट करेंगे, दे विल वेयर ए स्माइल. उनका जो जिंदगी भर का प्रॉब्लम है बचपन से लेके 55 तक, इट विल बी ऑल गुड. तो मेडिटेशन कैन चेंज इवन द प्लैनेट व्हिच डिफाइंस योर पर्सनालिटी. मार्स के बाद आती है द मोस्ट डिफिकल्ट प्लैनेट अकॉर्डिंग टू मी इज मर्क्यूरी. एंड यू आर इन द सेम प्रोफेशन, कम्युनिकेशन, मीडिया, planning. So people who are into sales, banking, finance, marketing, writing, even law, they are lawyers actually because they are good in communication. तो ये even IT, तो ये Mercurian rule trait होते हैं. तो Mercury अगर exalt हो जाता है तो they are perfectionists. For them they have zero tolerance, और या Mercury Scorpio में गया तो how they argue, I know what you are saying, I know what you meant, मेरे बिहार पे आप ही सोच लीजिए. तो वो अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं. माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है ये भी तो मुश्किल है. तो जिंदगी को कैसे मुश्किल में डालना है उसमें वो लोग पीएचडी कर लेते हैं. और मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ यू शुड राइट ए बुक एंड इट विल बिकम बेस्ट सेलर. और उसका टाइटल मैं बताता हूँ, उसका टाइटल होगा हाउ टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड. just by not letting go, just by not ignoring, just by not accepting and arguing on everything. So overthinking mind is the biggest problem. और जिन लोगों को OCD होता है
मेंटल हेल्थ की वजह से, और जो जो लोग हर बात पे अटक जाते हैं वो है एग्जॉल्टेड मर्करी। तो हाउ टू चेंज दैट? तो काउंसलर उनकी काउंसलिंग करेगा, कोई और कहेगा कि नहीं आप थोड़ा सा ये काम डाउन, कुछ कुछ आपको पिल्स दे देगा एंजाइटी के, तो दे बिकम एंशियस एक्चुअली, बार बार हाथ धोंगे, बार बार ये किसने कर दिया, ये कब किसने हिलाया, तो they tend to find small little things. So what to change, how they will change? Meditation. So the day you start doing meditation, you will be out of it. मेडिटेशन आपकी प्रोग्रामिंग को ही चेंज कर देगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग सो गुड। आप मेरी तरह हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे। दे आर एक्सट्रीमली केयरफुल, बट बेस्ट पीपल आर केयर फ्री पीपल, बट यू विल हैव बेटर एक्सेप्टेंस एंड यू विल बी हैप्पी। जिंदगी बदल जाएगी मेडिटेशन। नाउ कमिंग टू जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द प्लैनेट विच रूल्स विजडम, नॉलेज, लर्निंग। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करने के लिए कहना नहीं पड़ता, because that is imbibed in themselves. They have a spiritual bent of mind and they realize that meditation is the highest form of spirituality. आप पुराने जमाने में ऋषि मुनि, आप जंगल में बैठे थे, अभी कोई क्या बोले आप कभी आए नहीं, पेड़ के नीचे बैठे रहते, मंदिर तो कभी आए नहीं, तो बोले बेटा सबसे बड़ी पूजा होती है मनस पूजा, when you get connected to the higher self, meditation. So when they meditate तो गुरुत्व आपका एनहेंस हो जाएगा। जुपिटर is a significant of luck, is a significant of learning, your prosperity. जैसे पानी गिरता है तो स्लोप के साथ जाता है, प्रॉस्पेरिटी किसी के घर में आती है, वहीं पे आती है जहाँ पे हार्मनी होती है विद इन यू, अराउंड यू। तो ये कैसे क्रिएट होगा? जब जुपिटर एनहेंस होगा। जुपिटर कैसे एनहांस होगा? वन यू विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्ट, और वो स्पिरिचुअल कनेक्ट का जो मैंने कहा कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। तो व्हेन यू मेडिटेट यू विल बी मोर ब्लेस्ड। तो ऐसे लोगों के चेहरे पे ग्लो होता है, एंड उनको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत कभी नहीं पड़ती, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? व्हेन यू आर फीलिंग लॉस्ट, व्हेन यू डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हेन यू फील कि यार अपना लकी खराब है, फाइंड सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली। तो आपको जब एक्सेप्टेंस होता है वो जुपिटर से होता है, जब विजडम से होता है, नॉलेज होता है। वो अलग बात है, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ का मैं चेयरमैन हूँ, 1,500 लोग रहते हैं, और आई मीट 60 years old kids every day, 60 years old kids, because they never grew up. उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनको अपने अंदर वो चीज़ों को बड़ा चेंज करना है। कोई एरोगेंट रह गए तो एरोगेंट ही थे, कुछ इगोस्टिक रह गए, इगोस्टिक ही हैं, तो कुछ बहुत एडमेंट हैं, स्टबन रह गए। तो जब रियलाइज आप करेंगे तभी तो चेंज करेंगे। दिस इज माय फेवरेट स्टेटमेंट रोशनी, व्हिच आई यूज एवरी डे। डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। मतलब आप क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदले। तो दैट चेंज कैन मेडिटेशन कैन ब्रिंग इन योर लाइफ। जैसा आपने बोला कि जुपिटर के लोग ब्लेस्ड होते हैं, लाइक दे आर मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बट बाकी प्लैनेट्स के लोग जिन्हें दे लैक फोकस, तो हाउ टू गेट दैट फोकस ड्यूरिंग मेडिटेशन? कैसे कर सकते हैं वो लोग? एब्सोल्युटली, उसी पे मैं अभी आ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो खतरनाक प्लैनेट है वो बाकी है। तो जुपिटर के बाद बारी आती है वीनस, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, द प्लैनेट ऑफ ग्लैमर, प्लैनेट ऑफ लग्जरी, प्लैनेट ऑफ डिजायर्स। कि मुझे हर कुछ चाहिए, मुझे अपनी पहले रेंट पे थे, मुझे घर चाहिए, अब दूसरा घर चाहिए, रेंटल इनकम के लिए चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं थी, बाइक थी, अब गाड़ी चाहिए, एक और गाड़ी चाहिए। डिजायर तो खत्म ही नहीं होना है। फिर हमको अपने ब्रांडिंग करनी है, सब कुछ करना है। फिर लोग क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड के होते हैं। तो ये वीनस जो है वो डिजायर को रूल करता है, और वीनस इज ऑल्सो अबाउट योर आईज। इफ समबडी हैज गुड आई, यू टू हैव ए गुड आई, पेयर ऑफ आईज, so that means you should have a good Venus in your life. So that means you will get good amenities in you, around you. It will come to you naturally. But Venus also means distraction of every kind. Because अगर आपका desire ही fulfill नहीं हो रहा है, जो भी मिलने के बाद, जो सबसे पहले आपने सवाल किया था कि in spite of achieving what they really want, still they are vulnerable. तो ये Venus है, ये उसको उलझाए रखेगा हमेशा desire में। desire तो मतलब कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। जो मैंने कहा कि ख्वाहिशें हैं आसमान, ये ख्वाब भी ना जाने। अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने कहा था ड्रीम्स वो नहीं होते जो आप सोते हो देखते हैं, ड्रीम्स आर द वन व्हिच विल नेवर लेट यू स्लीप। तो मैंने लिखा कि इंस्पायर होके, ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते। तो भाई तो आप सो ही नहीं रहे हैं तो फिर कैसे होगा? तो जो आपकी जो नींदें उड़ी हुई हैं अपने डिजायर से, तो अगर आप मेडिटेट करते हैं तो नॉट ओनली दैट, वीनस गेट एक्सॉल्टेड इन पाइसन। ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है एस्ट्रोलॉजी में, एंड डिबेटेबल भी है कि यार जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव, लस्ट एंड डिजायर। उसको आपने एक्सॉल्टेड बना दिया जुपिटर में। हाउ? ओशो का उसमें एक स्टेटमेंट था कि काम से राम तक। उन्होंने कहा कि परम आनंद की अनुभूति आपको सिर्फ एक तो उधर से हो सकती है, दूसरा आपको मेडिटेशन से हो सकती है। मतलब उससे ज्यादा आनंद या जो एक्सॉल्टेड स्टेट है वो आपको मिलता है मेडिटेशन से। तो वन अ पर्सन बिकम मेडिटेटिव इन स्टेट,
तो वीनस गोज इन पाइसन ऐसा समझ लेना चाहिए. और व्हेन अ पर्सन हु हैज एक्सॉल्टेड वीनस विल बी ब्लेस्ड टू गेट एवरी काइंड ऑफ लग्जरी ऑन द प्लैनेट. फिर हम बात करते हैं द ब्रांड एम्बेसडर. अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के हैं और मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है सैटर्न. शनि का नाम लेते ही लोगों को पसीना आ जाता है. बट शनि इज, मैंने मेरा एक वीडियो है, यूट्यूब में वीडियो है, उसका नाम टाइटल रखा था मैंने बदनाम शनि. तो शनि को लोगों ने डराने के काम में लाया हुआ है. एक्चुअली सैटर्न इज ए जज. इट गिव यू रिजल्ट्स एज पर योर डीड्स एक्चुअली. तो अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप बुरा भला बोल रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं, तो भाई सैटर्न आपको परेशान करेगा. बट इफ यू आर डूइंग चैरिटी, जो इंसान जरूरतमंद की मदद करता है, ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है. बिकॉज सैटर्न इज अ प्लैनेट विच रूल्स पॉवर्टी, हार्डशिप, सारा जो स्ट्रगल है वो सैटर्न के हाथ में है. बिकॉज सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट. सो व्हेन अ पर्सन मेडिटेट, तो उसके अंदर वो पेशेंस भी आता है एंड उसके अंदर एक भावना आती है फॉर ह्यूमैनिटी और कंपैशनेट माइंडसेट उसका हो जाता है. एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग टू द सोसाइटी और पीपल हु आर नीडी एंड पुअर, देन सैटर्न विल बी हैप्पी. अब आखिरी दो प्लैनेट की बात करते हैं, वो है राहु एंड केतु. राहु इज अ प्लैनेट, जो ये कलयुग है रोशनी, ये राहु से. राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन. एवरीवन फील आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, नथिंग इज इम्पॉसिबल. हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर शाहरुख बन जाऊं. तो राहु में गलतफहमी होनी चाहिए. तो मैं तो कहता हूँ ठीक है, कोशिश करनी चाहिए. बच्चन साहब भी कहते हैं कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती. थर्ड हाउस में राहु गिव यू दैट इनिशिएटिव एंड करेज. बट राहु माया है, वो आपको इल्यूजन में रखता है. तो वो आपका इल्यूजन कैसे ब्रेक होगा? एंड दे आर द वन हु मे नॉट इवन विल बी एबल टू डू मेडिटेशन. क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन करोगे, राहु कहेगा कि नहीं, व्हाई यू आर डूइंग इट. कल किया था, रोशनी क्या हुआ था, बोले हेडेक हुआ था, और परसों इट वाज ए हॉरिबल डे. सी आई टोल्ड यू मेडिटेशन इज नॉट गुड फॉर यू. तो राहु विल मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन. So when you continue to do meditation, you will be able to overcome that kind of illusionary thought. Because human being क्या लगता है कि I know it all, don't tell me. Everyone feels like that. And तो Mercury is intellect, Rahu is illusion. मैं इसे कहता हूँ intellectually illusionary state है. आपको लगता है कि आप right हैं और जो right नहीं है. इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं. तो when you meditate, you will overcome your illusory state and you will get that divine intervention which makes you more happy and understanding about the situation. And the last planet is Ketu. Ketu is a planet which has nothing to do with materialism. वो इंसान 7 years की दशा आती है जिंदगी में, तो एक ही वर्ड में यूज करता हूँ, इट इज गोइंग टू बी अ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम ऑफ योर लाइफ. बिकॉज हर कोई इंसान मटेरियलिस्टिक है. हमें अपने डिजायर को पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, और केतु में उसका कुछ होता नहीं है. तो ओनली रेमेडी, एंड पीपल आस्क मी व्हाट इज अ रेमेडी, केतु की दशा आ गई तो मैं कहता हूं मेडिटेट. बिकॉज केतु इज अ प्लैनेट व्हिच गिव्स यू साल्वेशन. लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. 12th हाउस में अगर केतु है तो इंसान को मोक्ष मिल ही जाएगा. मेरा भी. तो बोले मोक्ष तब मिलता है व्हेन ईदर यू फुलफिल ऑल योर डिजायर्स और यू आर लेफ्ट विद नो डिजायर. मतलब यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, तो आपको मिलता है. और जब इंसान मेडिटेट करता है, कोई भी इंसान कैसा भी प्लैनेट हो, जितने मैंने बता दिए, one thing which you get because of Ketu, the person will become super intuitive. Everyone has a sixth sense, but you need to activate it, and the only way is meditation. So when you start doing meditation, you will become super intuitive, and again you don't need to go to any astrologer, because any thought coming through a whatever for a person or a situation will always be right. So that is the beauty of meditation, where you can change every kind of planet which is a good planet but not good for you, and you can make it better by implementing the technique of meditation. मून के बारे में मैंने नहीं बताया, which is the most important thing which I will tell you in a way. Right. So going back to my question, how can one focus again? During the process of meditation, one is lacking that focus. But वो करना चाहते हैं, they desire to do meditation, to practice meditation every day, but they are like overthinking हो रही है, thoughts आ रहे हैं, so they are not able to meditate. So how to get that focus during meditation? Absolutely. So now I will talk about moon. Moon is a planet which rules your emotions. जैसे आपने कहा कि how to focus. तो मून क्या है? It makes us wander. बच्चन साहब कहते हैं ना कि बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, बट होता उल्टा है. मन का हो तो अच्छा, मैं कहूँगा मन का हो तभी अच्छा. Then only people feel good about it. And entire astrology is based on moon sign. आपका नक्षत्र वहाँ से दशा डिसाइड होती है, कौन सा टाइम आपकी जिंदगी में चल रहा है. When you are happy, when you are going to get married, why you want this, when it will happen, when you will be sad or depressed or negative. तो वो सारी कहानी इंडियन एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड है. अब किसी के हॉरोस्कोप में अगर मून अच्छा है, द पर्सन विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट. और अगर मून अच्छा नहीं है तो द पर्सन विल नेवर हैप्पी अगेन नो मैटर व्हाट. जो आपने कहा कि अगर इन स्पाइट ऑफ अचीविंग एवरीथिंग पीपल, तो दैट इज द रीजन मन जो है वो भटकता रहता है. दैट इज द मोस्ट वॉन्डरिंग थिंग ऑन द एंटायर यूनिवर्स. मून इज योर इमोशन.
तो इमोशन अगर आपको कंट्रोल में करने हैं और माइंड को फोकस करना है, एंड दैट विल हेल्प यू टू बी हैप्पी, बिकॉज व्हेन मून इज गुड द पर्सन इज हैप्पी. चांद वो आपकी माँ है, आपका मन है, आपका इमोशन है. तो व्हेन यू मेडिटेट, वो 8 प्लैनेट की यही कॉन्स्पिरेसी रहती है रोशनी इंटायर एस्ट्रोलॉजी में, कि वो मून को कैसे परेशान करता है. मून सैटर्न के साथ है, पर्सन विल गो इनटू शेल. मून केतु के साथ है, पर्सन विल बी टोटली फ्रस्ट्रेटेड. मून मर्क्यूरी के साथ है, पर्सन विल बिकम ओवर थिंकर. मून राहु के साथ है, पर्सन विल हैव फोबियाज एंड ओल्ड डिल्यूजन इल्यूजन एंड इवन कैन गेट डिप्रेशन. So every planet, जुपिटर के पास है तो पर्सन विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड. वीनस के साथ है, पर्सन विल बी मोर क्रिएटिव एंड ग्लैमरस. तो हर प्लैनेट का एक इन्फ्लुएंस है मून के ऊपर. तो हाउ टू मेक श्योर दैट योर मून इज हैप्पी नो मैटर व्हाट? मेडिटेशन. तो व्हेन यू, तो आपने कहा कि कैसे फोकस करें, मैं कह रहा हूँ फोकस करना शुरू कर दीजिए. तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज हम लोग वी आर नॉट यूज्ड टू इट. We are not being programmed to sit idle and think about something without thinking anything, because we are supposed to think actually. तो किसी ने कहा था, इस सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम, कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम. अरे भाई जाओगे, मैं हमेशा कहता था सोचोगे नहीं तो होगा कैसे. फिर मैंने कहा कि करोगे नहीं तो होगा कैसे. फिर मैंने कहा भाई निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे. तो यू नीड टू टेक इनिशिएटिव. तो वो इनिशिएटिव सबसे पहले आप मेडिटेशन को पूरा सरेंडर के साथ कि आई एम डूइंग समथिंग, जो मैंने कहा कि विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, तो आप मेडिटेट करिए. लेकिन जो मैंने कहा था, यू पीपल टेंड टू गिव अप. तो 3 दिन करोगे आप, 10 दिन करोगे, नहीं, आई डोंट थिंक इट इज हैपनिंग, यू नो, आई एम नॉट गेटिंग एनी लाइट, आई एम नॉट ट्राइंग टू फोकस इन माय ब्रेथ और व्हाटएवर. तो ये सारे प्लैनेट की कॉन्स्पिरेसी है कि आप मेडिटेशन मत करिए, बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग. यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द वे यू आर बीइंग प्रोग्राम्ड व्हेन यू वर बोर्न. सो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा. 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन जाने दीजिए, लेकिन करते रहिए. मैंने कहा ना, डू 1 मिनट ईच फॉर 5 टाइम्स अ डे. तो अगर आप 1-1 मिनट से शुरुआत करिए, 2 मिनट करिए, फिर 5 मिनट करिए, यू विल बी ऑल सेटल्ड. फिर आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. विद दिस बिलीव दैट मेडिटेशन इज द ओनली थिंग व्हिच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. जैसे कि मेडिटेशन वी ऑल नो दैट इट हेल्प्स टू काम आवर माइंड, यू नो, इट्स, लोगों को लगता है इट्स एन एक्टिविटी टू मेक आवर लाइफ स्ट्रेस फ्री, बट क्या मेडिटेशन से और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स फील हो सकती है? इज इट पॉसिबल? जैसे मैंने अभी कहा रोशनी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर सेज एवरीथिंग हैज बिकम साइकोसोमेटिक. पहले कुछ साल पहले तक सब कहते थे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दे आर ऑल रिलेटेड टू स्ट्रेस. आज आप गूगल करिए एनी मेडिकल जर्नल, द बॉटम लाइन सेज अबाउट एनी डिजीज ड्यू टू स्ट्रेस, इवन कैंसर, ड्यू टू स्ट्रेस. एंड व्हाट इज स्ट्रेस? द स्टेट ऑफ योर माइंड. तो इफ यू चूज टू बी हैप्पी, मुझे अगर आप पूछिए, द मोस्ट easy thing or the most natural thing which comes to us is happiness. कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो. एटलीस्ट लुक एट द मिरर एंड स्माइल, बिकॉज व्हेन यू स्माइल योर माइंड थिंक समथिंग गुड इज हैपनिंग फॉर ए चेंज विद रोशनी. तो उस दिन क्या होगा, आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा, आपके वाइब्रेशंस, आपके हार्मोन्स, आपका सारा सिस्टम इतना पॉजिटिवली अलाइंड हो जाएगा, यू विल बिकम ए पावर हाउस ऑफ एनर्जी. तो पीपल हु आर हैप्पी, दे आर हेल्दी. Happy people will never get any kind of ailment, and happiness is a habit created. For some people it's very hard to, you know, achieve that. ये देखिए, फिर वो अपने आप को बता रहे हैं कि ये हमसे ना हो पाएगा. और मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान मेडिटेट कर सकता है, हर इंसान मेडिटेट कर सकता है, प्रोवाइडेड, जो मैंने कहा कि बॉक्सेस टिक कर लीजिए, सरेंडर के साथ, फेथ के साथ, बिलीव के साथ, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी. मेडिटेटिंग आप इंट्यूटिव हो जाएंगे. तो आपको कोई किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है. यू विल बी इवॉल्व, माइंड, बॉडी, सोल सब इतना अलाइंड हो जाएगा, आपकी एनर्जी इतने लेवल पे पहुंच जाएगी. मेडिटेशन विल, मतलब यू विल थैंक ए पर्सन. मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर आप, मेरे ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होंगे when you are meditating, because when a client come to me, I don't let them talk. मुझे पता ही नहीं आप कौन. I start talking for, मेरा 45 मिनट्स का सेशन है, 15 मिनट में बोलता हूँ नॉन स्टॉप. सांस भी नहीं लेता, मुझे मालूम है सांस लूंगा ये बीच में बोल देगा. तो मैं उसको जब बोलता हूँ, okay, tell me now who you are and what you do and what you want me to check, and I hope whatever I've told you is resonating with you. They said you have covered it all and this is what the situation is. So that means it is, everything is there. तो जब उसको समझ में आता है कि यार it is a part of my journey, तो क्या करेगा, मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बना लेगा. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, यू विल बी डन. तो मुझे लगता है उसको जिंदगी से आप जोड़ लीजिए. डॉक्टर, ऑल्सो दिस इज माइंडफुलनेस, ये वर्ड काफी आजकल कॉमन हो गया है, बहुत सुनने में आ गया है. एक्सपर्ट्स ऑल्सो रेकमेंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, बट इज इट ट्रू दैट देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, और आर दे सेम? योग became popular in India when it became yoga. So when Western countries adopted it, हॉट योगा, ये योगा, वो योगा, तब इंडिया में आँख खुली
फिर थैंकफुली बाबा रामदेव एंटर्ड एट द ड्यूरिंग द सेम एरा, अगेन अवेयरनेस क्रिएट हुआ एंड पीपल स्टार्टेड डूइंग इट, एंड अभी वो तो करिकुलम का पार्ट बन गया हर स्कूल में. हमारे टाइम में स्कूल में हम लोग तो मजाक उड़ाते थे, हमने योगा सीखा नहीं, सीख लेते तो और जिंदगी बेटर हो सकती थी. तो ऐसे ही व्हेन मेडिटेटिव, ये जो मेडिटेशन इंडियन टेक्निक्स हैं, दे हैव बीन रीब्रांडेड, रीपैकेज इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड दे हैव कॉल्ड इट माइंडफुलनेस. तो ये अब ऐप आ गए हैं, पूरी ये तो $1 billion इंडस्ट्री हो चुकी है वेलनेस, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक. People are now more aware about their own well-being. So people have started doing this kind of mindfulness. So mindfulness is Indian meditative techniques repackaged and rebranded. But उसमें क्या है कि थोड़ा सा उन्होंने guided meditation को ऐड किया है. जैसे कोई ऐप है वो कहेगा close your eyes, रोशनी, and visualize there is you are walking besides the beach. फिर आपको आवाज आएगी उसमें ऐप में से, सी शोर की आवाज आएगी. तो दे आर ट्राइंग टू मेक ब्रिंग यू टू मोर टुवर्ड्स नेचर. डॉक्टर्स इतने सालों से इंडिया में कहते हैं अरे ऐसा करिए, आप हवा पानी बदल के आइए, यानी आप कहीं हिल स्टेशन चले जाइए, कहीं सी के पास चले जाइए. तो नेचर इज ऑल्सो थेरेपेटिक. इसीलिए ग्रीन कलर, ग्रीन, वहाँ ग्रीन कर्टन्स होते हैं हॉस्पिटल में, ग्रीन एप्रन्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज ग्रीन इज ए हीलिंग कलर. तो नेचर इज ऑल्सो हीलिंग इन एवरी वे. तो ये जो आपका सवाल था वो यही है, bring that thing with nature. That is how you will be able to overcome that. But there's also this term astral travel. Does that have any relation to meditation? देखिए, there are many ways. People even now claim that I will help you to go to your past life, which is not possible actually for a human being to take you there. But ठीक है, थोड़ा सा बहाना है to make you go inside you. तो जो आपने एस्ट्रल ट्रैवल की बात करी थी, पीपल गेट मेनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हेन दे डू रियल मेडिटेशन, बिकॉज व्हेन यू आर मेडिटेटिंग यू आर नॉट इन योर ओन सेल्फ. अब आप कौन, आपकी आइडेंटिटी वहाँ पे खत्म हो चुकी है. यू आर कनेक्टेड टू ए डिफरेंट हायर काइंड ऑफ एनर्जीज एंड यू आर फ्लोटिंग इन दैट काइंड ऑफ एनर्जीज. तो ये आपको किधर भी लेके जा सकती है. समटाइम पीपल एक्सपीरियंस दे आर फ्लोटिंग, वो हवा में आ गए हैं, और दे आर ट्रैवलिंग समवेयर, और दे गेट, जैसे मैंने पास्ट लाइफ की बात करी थी. तो एस्ट्रल ट्रैवल इज नथिंग बट योर ओन बिलीफ in subconsciously basically is the right word. Nobody can do it consciously. इसलिए हमने कहा कि मैं आपको पास्ट लाइफ में ले जाऊंगा, कोई नहीं ले जा सकता. It is your subconscious mind which, because वो भी guided meditation की तरह होता है. Think about तो आपका वो mindset उधर सोचना शुरू कर देता है. But it helps you to heal yourself. कोई ना कोई आपको कोई इंडिकेशन, कोई कुछ है, प्रोग्रामिंग है बेसिकली. तो इट इज कंडीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग. मतलब जैसे किसी को कुछ एलिमेंट होता है, उसको फिजियोथेरेपी कराया जाता है, किसी का स्प्रेन हो गया, कुछ होता है, तो आपकी कंडीशनिंग हो रही है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर ब्रेन मसल हो रही है. तो धीरे धीरे यू स्टार्ट फीलिंग गुड एंड हैप्पी अबाउट दैट. तो ये जो आपने कहा, ये इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंसेस है, बट वॉट एवर वे यू फील, इट इज ओके. It's like an effect of meditation. Definitely yes. Like you are floating, because in meditation you have no control. अगर मुझसे कोई पूछा है what do you think while meditating, I say this is a wrong question. Meditation is a thoughtless state. You are floating in a different world altogether without having any kind of control on it. Yeah. बहुत सारे से लोग हैं, who start crying while meditation. Their emotions are flowing, they're weeping. So is it okay? Is it part of it? Is it normal? I think it is okay, because we sometimes try to hide our own emotion, hide our own emotions. And when you are meditating, again, as I've said, you are not thinking anything consciously. So जो आपकी deep rooted, deep imbibed emotions है within you, it may come out. And I think it is a good idea to express yourself. And when you, कभी कभी कहते हैं कि कभी कभी रो लेना भी बहुत अच्छा होता है. You feel light. कि वो किसी ने कहा कि दुख बांटने से बढ़ जाता है और खुशी बांटने से बढ़ जाती है. तो when you share, कोई सामने नहीं है, but you are just expressing your own emotion, you feel light. No problem. It's like meditation is so important, लेकिन बहुत सारी situations होती हैं, there are immediate situations, immediate problem होती है. So how to apply meditation, at that quick moment? कैसे मतलब अपने आप को उसी वक्त शांत करें through meditation? कुछ impulse movements होते हैं, गुस्सा आ रहा है या कुछ ऐसा कुछ situation है. So how to apply meditation at that duration? देखिए, meditation can be done anywhere and anytime. मुझे कई बार invite आया रैम्प शो में, फैशन शो, and I felt here I'm a scholar, I'm not supposed to be there in few places. People judge मुझे, I don't care otherwise, मैं जाता हूँ. लेकिन वहाँ पे मुझे लगा यार, let me meditate. लाइट थी, म्यूजिक थी,
तो आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. अब ये बड़ी लोग सुन रहे होंगे, बोलेंगे यार अजीब आदमी है, मतलब रैम में फर्स्ट रो में आप बैठे हैं, यू नो, और आप वहाँ मेडिटेट कर रहे हो. तो यू इफ यू फील द कनेक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई हैव नो क्लू हु आई एम and from where I have come and where I am going. I'm in this moment. So when you are in that moment, इसीलिए sometimes you try to focus on your breath. So when you are breathing, you just focus and you don't know, you know, I'm focusing on my breath, or I'm not looking at you, I'm looking at a light which you know, ये एक ज्ञान चक्र कहते हैं. तो वो उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली. तो वो कब होगा? जब आप उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे और बिलीव के साथ करोगे. लेट मी गिव इट ए ट्राई, कभी नहीं होगा. I will do it, I have to do it, and I can do it. Then only you will be able to do it. It's a long process. I think it is all moment. The moment you know, take a vow that I need to do it and have to do it, it will come to you. What feeling is that? What is that effect that you feel? You will start feeling better. You will start feeling more happy for no reason. ना कोई वजह थी, ना कोई ख्याल था, बेवजह थी, बेख्याल था. तो I keep on smiling no matter what. So before my last question for today's episode, any 5 tips that you would like to give to our audience, you know, for daily beginners who are trying to practice meditation, या वो लोग जो already meditation करते हैं, कोई भी ऐसी 5 tips? देखिए, सबसे पहले मैं बिलीव करता हूँ, जैसे अभी फैशन में चल रहा है मैनिफेस्टेशन, और इसका लोगों ने मैनिफेस्टेशन नहीं, उनको सुनाई देता है मनीफेस्टेशन, यू नो, कि दे विल अट्रैक्ट मोर मनी. सो इसको बहुत ही शैलो बना दिया. मैनिफेस्टेशन इज power of visualization. I believe in that. So whenever you are meditating, you keep on thinking about positive, happy things in you, within you, around you. Yeah. You know, happy health, basically good health, good relationships, you know, good environment. तो ये आपको अपने सिस्टम में इम्बाइब करना पड़ेगा. इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन कि यार मेरा प्रमोशन हो जाए, या यू नो, मेरा बिजनेस फ्लरिश कर जाए, ये आप एक बहुत ही शैलो लेवल पे मेडिटेशन कर रहे हैं. मेडिटेशन इज एनर्जी. मुझे लगता है कि यू आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम गॉड. आप मंदिर जाते हैं, भगवान ये करा दो. अरे भगवान, जब आप चलना शुरू भी नहीं किए थे, सोच रहे थे मैं जाऊं क्या टेम्पल, या भगवान को पता था ये आने वाला है, उसे तो सभी पता है, उसको क्या आप मांग रहे हो? डोंट डिमांड. तो व्हेन यू डू विद सरेंडर, सेल्फलेसनेस, without any you know, something in return, then you will live out. तो believe, faith, surrender, positivity, happiness, patience, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं. इनको अगर आप मेडिटेशन से जोड़ते हैं तो you will definitely evolve. और अगर आपको लगता है करके देख लेती हूँ एक बार, शायद मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की है नहीं, हमसे ना हो पाएगा, तो वो कभी नहीं होगा. तो इट इज जस्ट योर अप्रोच. तो इसीलिए मैं आपका नाम रोशनी है, मैंने हर वर्ड पे कोशिश की है कि मैं पोइट्री लिखूं. तो रोशनी में मैंने एक पोइट्री लिखी थी कि तलाश रहा हूं मैं रोशनी, जाने कहां मंजिल का बसेरा था. तलाश रहा था मैं रोशनी, जाने कहां मंजिल का बसेरा था. देखा जब मैंने गौर से, तो मैं ही चिराग और उसके तले अंधेरा था. तो एवरी पर्सन हैज दैट लाइट विद इन. तो इफ यू जस्ट इग्नाइट इट ओनली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, यू विल बी डन, यू विल बी हैप्पी, एंड देन यू विल बी ब्लेस्ड and stress free. Well, thank you so much, Doctor, for being here today. It was an amazing talk. I mean, I hope my audience has got all their tips. Thank you so much. I think you've got all your answers. That's all for today. I'll see you next Sunday.